दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम तु हर पापम दीप ज्योति नमोस्तुते. Light is considered as a symbol of auspiciousness, prosperity and abundance. Deep Jyoti Parabrahma, Deep Jyoti Janardana. Come forward and light the lamp. Thank you, sir. Ma'am. शारदे कर दे हृदय सुंदर ही सुंदर. शारदे कर दे हृदय सुंदर ही सुंदर. Of sociology and journalism and mass communication. In the present era of globalization, which gives importance to free flow of information, media acquires an important role. Media and society share a complex, bi-directional, dynamic and evolving relationship. This conference intends to provide a platform to social scientists, media professionals, activists and academicians for in-depth discussion on social transformation and media-related issues. The deliberations of this conference are expected to culminate into recommendations for great occasion, the birth anniversary of two of our great leaders, Mahatma Gandhi and Sri Lal Bahadur Shastri. We wish to acknowledge Father of the Nation, Mahatma Gandhi. It is a proud privilege to extend a very warm welcome to our chief guest, Sri Rahul Dev, an eminent senior media professional. We acknowledge the distinguished presence of Dr. Ashok Gupta. Thank you, sir. Namaskar.
The chief guest of the morning, Shri Rahul Dev, a known face in the media of this country and abroad. Professor Ashok Ogra, Professor Sanjeev Bhanawar, Professor Singh, other dignitaries, ladies and gentlemen. It's indeed a matter of great privilege and honor to me to welcome you all to this two-day National Conference on Social Transformation and Media, Realities and Challenges. The IS University has been organizing such conferences from time to time. We pick up the current topics and try to bring in specialists and experts from all over the country to enlighten the paths of our students and our colleagues. I am grateful that Shri Rahul Dev ji accepted our invitation and be here to bless the students and staff alike. The IS University is not a very old name in the list of universities in this country. It was started only a few years back. In fact, the genesis of this university goes back to 1995, when we started with the International College for Girls, with just about 62 students and 7 members on staff, which became an autonomous college later. And in 2004, we were granted the status, 2009, we were granted the status of a deemed university by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. The review committee constituted, which is called Tandon Committee, reviewed the working of all the deemed universities in the country, and I always take pride in telling people that we are amongst the first 38 universities of the country which have been placed under category A. The credit of all this goes to our staff and students alike. Our students come from different parts of the country. We have over 4,800 girls studying in various programs in arts, science, commerce, home science, fine arts, management, computer science. And I may inform you that we have students right from Jammu Kashmir to Kanyakumari, except some parts of South India. We have students from all over, and within a short period of time, this university has established itself as a name in the educational environs of this country. This has been possible, as I said, because of the performance of our students, the hard work of our staff, and the quality of education that the university provides in this campus. The neoliberal communication policies and pervasive digital technologies have resulted into transformation of social patterns. New challenges have emerged in the society due to information revolution. There is a need to examine the role of media in context of information, correlation, entertainment, and social mobilization in global as well as local contexts through articulation of alternative discourses. I'm sure the 2 days of deliberations that we will have will certainly
benefit the students of media and mass communication, academicians and public at large. The deliberations of this conference are expected to culminate into recommendations for policy makers. Once again, I extend a very hearty welcome to all of you. I am grateful to our esteemed guests, esteemed resource persons who have accepted our invitation and came all the way from different places to bless our students. Thank you and welcome. Faculty of Arts and Social Sciences, the IIS University, for his introductory remark. Namaskar. Welcome to everybody. Dr. Ashok Gupta, Vice Chancellor, the IIS University. Shri Rahul Dev, our keynote speaker. Dr. Rafi Gupta, Rector and Registrar of the IIS University. Professor Nisha Yadav, convener of the conference. Distinguished scholars, participants, and dear friends. I would first like to thank the announcer for asking me to say a few words by way of introductory remarks. Let me begin by stating that I appreciate the fact that this conference on social transformation is so aptly beginning on this day. The announcer has already referred to the significance of this day. This is the birthday of both Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. About Gandhi, just one additional word. This day is particularly apt because one of Gandhi's major missions was social transformation by way of reform, even revolutionary change in the structure, institutions, processes, and value orientations of society. I, however, feel quite diffident saying anything regarding the theme of the conference, social transformation and media, to a gathering of eminent scholars and practitioners in their respective fields. So, I thought the safest thing for me to do would be to begin with myself. Personally speaking, it's important for me what kind of images I carry with me in my mind when I retire for a night's rest. Last night I was quite lucky. I was watching a TV program. The presenter began by referring to an incident that took place in a restaurant in Germany. An elderly gentleman was sitting at a table, and at the next table there was a young couple with a child. Soon, after some time, the couple stood up to leave, and the elderly gentleman noticed that there was a lot of food which was still lying on the table, which had been ordered but not used. The elderly gentleman noticed it and drew the attention of the couple to this. The couple very curtly replied, "This is our money, it's none of your business." The elderly gentleman, with a smile on his face, replied, "That's precisely my point. This may be your money, but the resources are ours." This kind of positive vibes, this part of the social message which media can help spread all over by creating some kind of awareness is something very important, and therefore I see the link between social transformation and media. Let's now look at what different media have done to my daily life. When the day begins, no communication is possible between my family and me. Why? Because at that time I'm busy reading the newspaper. There can't be any communication between me and other members for another half an hour. I'm busy attending to my mailbox.
When we move to the breakfast table, I can't communicate with our granddaughter. She has her ears plugged with earpieces listening to the FM radio. I can't speak with my wife. She's busy navigating through her WhatsApp account. What a wonderful morning. Under the weight of mass communication systems, communication between people living under the same roof is gasping for life. I hope I won't be misunderstood. I'm aware of the great service that different media have done and are doing to bring about genuine social transformation. I'm merely sharing my thoughts on an issue that occasionally bothers me. Let me not forget one of the positive things that the media does to me quite regularly every morning. When I leave for my university, I usually get a message from my bank telling me about the balance in my savings account. That indeed is an excellent service. Since my bank account is held jointly with my wife, the message from the bank is a much safer way of learning how much of my money I'm always told has been so well spent. It's a small price to pay for a happy family. I don't wish for any transformation there. One thing, however, is evident. Media has become an integral part of life in modern times. I would now like to briefly refer to one specific medium, the social media. Social media is a new medium, a medium in its own right. Apart from reviving old friendships, retrieving lost relations, this new medium is helping build new bridges too. But there is also a problem here. Social media is a text-based medium. Whether it's a written text or of late, a spoken text too, the only contact between the interacting parties is within the abstract structures of language. It's a kind of discourse which allows you to put on a performance, where you can pretend to be a kind of person that you actually are not and get away with it. The point that I wish to make is that in the absence of physical cues, the participating individuals in social media are free to construct and deconstruct their identities as they see fit, and do so with impunity. Social media has consequences for sociological structures too. It would be worth our while to study how and also at what speed the definition of the word friend is changing in contemporary times. Let me come back to a theme of media transforming society. If by society we mean some kind of human community where members interact with one another in a meaningful way, then there is something to ponder over. I admire the creative genius of people who, with their brilliant ideas, have been adding new dimensions to modern media, Mark Zuckerberg included. I appreciate the great service that media is rendering to society, social media included. I'm all for transformation, social transformation included. All that I pray for is a long life to society itself. A society sustained by interaction between individuals at the human level, not in the virtual world, but in the real world. Interaction measured in terms not only of emotional intelligence, but also filled with rich emotional content. It is possible that some of the speakers will take up one or more than one of the points that I have touched upon. I'm sure during the conference, the course of the deliberations of the conference, eminent subject and field experts will throw light on many more serious aspects of the theme of the conference. I look forward to being enlightened by the deliberations that will take place today and tomorrow. Thank you. Ladies and gentlemen,
May I now have the privilege to introduce our chief guest for the conference, Shri Rahul Dev. Mr. Dev has spent about 20 years in Hindi and English print journalism and 15 years in television. A postgraduate in English literature from Lucknow University, he started his career with The Pioneer at Lucknow. He was executive editor of Jansatta, the multi-edition Hindi daily from the Indian Express Group. He entered television in 1997 with Aaj Tak as its executive producer and anchor. Thereafter, he has worked with DD News, Z News, Janmat and CNEB News, where he was the editor-in-chief and CEO from 2008 to 2010. He has also produced and anchored 104 episodes of a weekly interview program, Nishan, produced a weekly talk show, Women at Work for DD News, and a daily business news bulletin, Market Mantra, for All India Radio 2. Mr. Dev also works with Indian and multilateral voluntary and developmental organizations like UNICEF, UNDP, UNAIDS, NAHO on developmental and communication issues. He has been associated with major translation projects such as UNESCO's Education for All Global Monetary Report 2015 Summit. He is managing trustee of Samyak Foundation, which has sensitized and trained over 1,200 journalists in 12 states of India, Nepal, and Bangladesh on HIV/AIDS. He has also been nominated as member of the Lok Sabha Speaker Research Initiative by the Honorable Speaker Srimati Sumitra Mahajan. Sir, we are deeply honored to have you amongst us. I request you to kindly deliver the keynote address. आदरणीय डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर जैन, शिखा जी, डॉक्टर गुप्ता, पवित्र, हिंदी में बोलूं तो चलेगा ना? एक समय था जब अंग्रेजी में पढ़ता लिखता था, थोड़ा बहुत भी करता हूँ, लेकिन मैं बोलता अब नहीं अंग्रेजी में, हिंदी में बात करूँगा आपसे। क्यों करूँगा वो भी उसको बताऊँ। सबसे पहले हृदय से आभार इस बहुत अच्छी नई लेकिन उदीयमान और बहुत उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए, एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जो हम सब के लिए बहुत अहम है, कीमती है। मेरे लिए तो निजी रूप से है ही, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हूँ। और आपको जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उठाए जाएंगे, मैंने देखा जो कार्यक्रम बना है उसमें कोई भी ऐसा पहलू मीडिया और समाज के रिश्ते का नहीं है जो छूट गया हो। तो मैं आपको और संगोष्ठी के आयोजकों को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। सचमुच बहुत गहराई से और विस्तार से विस्तृत चिंतन आपने किया है और हर कोण को देखने की कोशिश की है। सीधे बात पर आता, मीडिया और सामाजिक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। आमतौर पे आजकल इतने बड़े महत्वाकांक्षी विषय कम रखे जाते हैं। सामाजिक रूपांतरण की बात करना ही एक अपने सामने एक बहुत बड़ी बात रखना है और ये रखी जानी चाहिए। कुछ बुनियादी बातें उनसे शुरू करते हैं। हम जब मीडिया कहते हैं, आजकल आमतौर पे हमारे मन में जो धारणा बनती है वो मीडिया यानी टीवी। लेकिन मुझे लगा कि आपने जिस तरह से विस्तृत चिंतन किया है, तैयारी की है, मीडिया यानी माध्यम। वो केवल माध्यम, मीडियम का बहुवचन है, यानी माध्यम का बहुवचन है। जो भी संचार के संप्रेषण के माध्यम है वो सब मीडिया में आते हैं, यानी हम माध्यमों की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब यहाँ रहें तो ये ध्यान रखें, जब भी मीडिया बोले तो उस मीडिया में अखबार, टीवी चैनल, नया ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब आते हैं और उसमें अपनी आपसी बातचीत, ये भी एक मीडिया है, एक माध्यम है।
दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि आमतौर पर, और चूंकि आपने मुझे बुलाया है, तो एक सहज समीकरण हमारे मन में बैठा हुआ है कि मीडिया यानी पत्रकार, मीडिया यानी जिसे हम न्यूज़ मीडिया कहते हैं, समाचार माध्यम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे हम, और अशोक उग्रा जी यहाँ बैठी हैं तो हम सबके उस्ताद हैं, मित्र भी हैं। हम अंग्रेजी में जैसे मीडिया यूनिवर्स कहते हैं इस देश का, तो उसमें समाचार चैनलों की को देखने वालों की कुल संख्या प्रतिशत में कितनी होगी, कोई बता सकता है? अंदाज क्या होगा? जितने लोग टीवी देखते हैं देश में, उनमें कितने लोग समाचार देखते होंगे? 25%? 50? हाँ, 40? 40-50 के आसपास? अरे वाह, बधाई अशोक जी। सिर्फ 8%, सबसे करीब आप थे। तो पहला तो भ्रम ये दूर हमको करना होगा। और अक्सर क्या है कि मीडिया, हमारे जैसे लोग, हम हर समय कटघरे में खड़े रहते हैं। आज मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जो समाचार मीडिया से, चैनलों से, हम लोग जो काम करते हैं उससे खुश हो या संतुष्ट हो। हम हमेशा हर जगह कटघरे में खड़े हैं और हमसे जवाब मांगे जाते हैं जो मांगे जाने चाहिए। हम जवाबदेह हैं, इसीलिए हम आते हैं सहर्ष जवाब देने के लिए, आपको सफाई पेश करने के लिए। लेकिन दरअसल एक संपादक, एक पत्रकार के साथ साथ यहाँ कुछ बड़े फिल्म निर्माताओं को भी होना चाहिए, कुछ टीवी सीरियल बनाने वालों को होना चाहिए, कुछ मनोरंजन के चैनलों के मालिकों को होना चाहिए। ठीक बात? विज्ञापन की दुनिया के बड़े लोगों को होना चाहिए। और अखबारों और समाचार चैनलों के तो लोगों को होना ही चाहिए। तो माध्यम में फिल्में भी शामिल हैं, माध्यम में मनोरंजन का सारा कंटेंट, यानी जो गाने लिखे जाते हैं आजकल, चाहे इंडी पॉप हो चाहे रॉक हो, वो भी माध्यम है और वो भी प्रभावित कर रहा है ना? जो नए तरह के गाने लिखे जा रहे हैं। ठीक बात? ये सब मिलकर बनती है वो दुनिया, वो आभासी दुनिया जिसका जिक्र भी हुआ, और असली दुनिया जिसमें हम लोग जैसे जिस हवा में सांस लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कब सांस ले रहे हैं, कब सांस गई, अंदर आई और गई, और जैसे ही हम जगते हैं सांस के प्रति वो प्राणायाम हो जाता है। वैसे ही हमारी जो दिमागी दुनिया है, या जो हमारा जो दिमागी हम हैं, हमारा मैं है, स्व है, वो इन तमाम माध्यमों द्वारा निर्मित आंतरिक मानसिक दुनिया में जीता है। और ये सारी चीजें मिलके वो दुनिया बनाते हैं जिसमें हम भीतर से जीते हैं। हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारी चेतना जीती है। और हमें इस स्तर पर जब तक हम सोचेंगे नहीं और बात नहीं करेंगे, तब तक केवल पत्रकारिता की बात करने से, केवल एक समाचार चैनल की बात करने से बात बनेगी नहीं। तो अगर मैं कहूं कि जिम्मेदारी के लिहाज से देखें तो हमारी जिम्मेदारी, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा और बुरा, अशोक जी और जैन साहब, उसमें सिर्फ 8% बनती है देश में। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो बाकी 92% है, उसको उस तरह से कभी जवाबदेही के लिए कटघरे में खड़ा किया नहीं जाता है ना? तो ये सारे माध्यम मिलकर क्या करते हैं, हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं? मैं अपने को अब उनसे अलग नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, उसी के रूप में बात कर रहा हूँ आपसे, उनकी ओर से बोल रहा हूँ आपसे। हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं? माध्यम समाज का मन बनाता है, अंतःकरण कह सकते हैं जिसको। मैंने कहा, मैं उसको चेतना कहना पसंद करता हूँ, मैं उस स्तर पर सोचना पसंद करता हूँ। तो हमारी चेतना है, निजी चेतना, हमारी सामूहिक चेतना, या
राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक चेतना, यौन चेतना, कुछ भी कह लें, हमारी आर्थिक चेतना, ये सारी चीज़ें, इनको बनाने गढ़ने का काम और बिगाड़ने का काम भी, बनाना, बिगाड़ना और बदलना, ये तीनों काम हम सब के हैं, यानी हम माध्यम वालों के। तो अगर आप कल्पना करें कि अगर हमारे जीवन में अखबार ना होते, कोई चैनल ना होता, कोई रेडियो नहीं होता, सोशल मीडिया भी नहीं होता, किताबें नहीं होती, किताबें भी माध्यम है, कहना भूल गया, तो फिर मनुष्य क्या होता है? उन गुफाओं में होते हैं। तो माध्यम इसलिए हैं दुनिया में सब तरह के माध्यम, क्योंकि मनुष्य की चेतना में उसकी एक बुनियादी जरूरत है जानना, वो जानना चाहता है और वो अपने मन का रंजन भी चाहता है, जिसको हम मनोरंजन कहते हैं। जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा, एक दूसरे के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने गांव, अपने जिले, अपने शहर, प्रदेश, देश, दुनिया के बारे में एक सहज, ये मनुष्य, ये अंतर्निहित जिज्ञासा हम में है। हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम जाते हैं इन माध्यमों के पास और इसीलिए इन माध्यमों का निर्माण हुआ। और हमारी जिज्ञासाएं जैसे जैसे महीन और सूक्ष्म और विस्तृत हुई, वैसे वैसे माध्यमों का विस्तार हुआ है, हम देखा। तो हमारी ज्ञान से जुड़ी हुई जिज्ञासा के लिए पुस्तकें आई, ज्ञान निर्माण हुआ, शोध आया, वो सब आज भी है, वो भी आया। मनोरंजन की जिज्ञासा, उसकी ज़रूरत नहीं, मनोरंजन के तमाम माध्यम पैदा किए। पहले केवल कविताएं, कहानी, गीत होते थे। हमारी सारी लोक कथाओं से लेकर आज तक लता मंगेशकर और कौन सी घोषाल है आजकल, श्रेया घोषाल तक। मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, इसलिए जानना जरूरी है। तो मित्रों, ये सब मिलकर, जैसे मैंने कहा, बनता है वो माहौल, वो हवा, जिसमें हम यानी समाज का एक घटक को हम सब मिलके जीते हैं, जन्मते हैं, जीते हैं, बढ़ते हैं और फिर विसर्जित हो जाते हैं। और ये सारे माध्यम मिलकर हमारा निजी स्तर पर और समाज का लगातार एक निरंतर, सतत, अनवरत रूपांतरण कर रहे हैं हर क्षण। और ये ऐसा होता आया है। आज ये पहली बार नहीं है कि पिछले 5 साल में चैनल नहीं आए। चैनल नहीं थे तो उनसे पहले कुछ और था, अखबार थे, अखबार नहीं थे तो उनसे पहले कुछ और था। तो ये प्रक्रिया तब से चल रही है जब से मनुष्य ने बोलना और सुनना शुरू किया है और जानने की, अपनी गुफा से बाहर निकला है। वो उसने कहा कि ये दुनिया कैसी है, चलो चल के देखते हैं। तब से ये प्रक्रिया चल रही है, ये रूपांतरण चल रहा है। कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, मैंने नहीं जाना है। अब ये तो बड़ी एक लंबी चौड़ी दार्शनिक बात हो गई, लेकिन इसको ध्यान में रखना जरूरी है। मुझे अच्छा लगा जैन साहब ने जिन बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर और गहरी बातों की ओर संकेत किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनंदन करता हूँ आपका। पहली बात मैं ये कहूँगा कि मीडिया की, यानी समाचार मीडिया की और जो गैर समाचार मीडिया है, हम सब की जो भी माध्यम में है, जो भी किसी भी एक ऐसे अधिकार की स्थिति में है जो दूसरों के मन को और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, उसकी एक स्वाभाविक नैतिक जिम्मेदारी अपने आप बन जाती है। वैसे ही जैसे एक पिता की जिम्मेदारी होती है, या एक पति की होती है, या एक माँ की होती है, या एक शिक्षक की होती है, जो भी किसी भी अधिकार की स्थिति में है, जो अपने कहने और करने से किसी को प्रभावित और बदल सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। हम बहुत बड़े स्तर पर, मास के स्तर पर प्रभावित करते हैं, इसलिए हमारी उतनी ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से। लेकिन मैं पहला निवेदन ये करूंगा, हमें कटघरे में खड़े होकर, चूंकि मैं बोल रहा हूँ, सफाई देनी है आपको। कल ही मैं दरअसल इस पर लिख रहा था, तो अभी वो विचार चिंतन प्रक्रिया चल ही रही है। कल इस पर काफी लंबा ट्विटर पर संवाद हुआ मेरा बहुत सारे लोगों के साथ। मेरा ये कहना था कि एक नैतिक विश्व की अपेक्षा करना निरर्थक है। ये जो दुनिया है, ये मनुष्य की नैतिकता वाले संदर्भ में नैतिक नहीं है।
वो मनुष्यकृत किसी भी नैतिकता से परे है। अनैतिक नहीं कहूंगा, लेकिन परानैतिक है। ये जो सृष्टि है वो मनुष्य के न्याय की परिभाषा में न्यायी भी नहीं है। कैसी है ये भी हम अभी जानने की कोशिश कर ही रहे हैं। जो पिछले 5-10 हज़ार से चल रही है कोशिश, हम शायद कभी जान पाएंगे कि नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन आम धारणा ये है साहब कि मीडिया का काम, अखबारों, चैनलों का, समाचार चैनलों का काम ये है कि उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उनको अच्छी चीज़ों को बढ़ाना। अभी गुप्ता जी बात कर रहे थे, हम भी अपने आप से उम्मीद करते हैं, समाज तो हमसे ये करता ही है कि हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। हम बहुत नकारात्मक चीज़ें दिखाते हैं, हम लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप ज्यादा कौन बिगाड़ रहा है? अगर बिगाड़ रहे हैं तो बिगाड़ तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों बिगाड़ रहे हैं मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन अपनी सारी संपूर्णता में वो सीरियल, वो फिल्में, देशी और विदेशी, और जो विज्ञापन और फिल्में थिएटर में और टीवी पर जो हम देखते हैं, वो ज्यादा हमारी चेतना का रूपांतरण कर रही हैं, हमारी सामाजिक रूपांतरण कर रही हैं, या जो हम 8% लोग करते हैं, दिखाते हैं। हम सामाजिक रूपांतरण की बात कर रहे हैं, मैं उसको भूलूंगा नहीं। हम यहाँ राष्ट्रीय चेतना की बात और देशभक्ति बढ़ाने की बात वगैरह अभी नहीं कर रहे। तो जैसे जैन साहब जिन चीज़ों की उल्लेख कर रहे थे, जैसे जैसे हम वैश्वीकरण कह लें उसको, तकनीक, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और लगातार नई नई शक्तियाँ आई हैं पिछले कई दशकों में इस देश में, दुनिया में, और हम उनमें शामिल हैं। वैश्वीकरण एक सच्चाई है, वैश्विक तकनीक और टेक्नोलॉजी एक सच्चाई है, वैश्विक संचार एक सच्चाई है, वैश्विक बैंकिंग एक सच्चाई है, वैश्विक कंपनियां और बाजार एक सच्चाई है। अमेरिका में या कहीं पे फिनलैंड में कोई एक प्रोडक्ट बनती है, वो 6 महीने में भारत आ जाती है। हम सब एक विश्व बाजार में भी हैं, हम एक विश्व समाज में भी हैं, और एक हम वैश्विक उपभोक्ता भी हैं, स्थानीय भी हैं और वैश्विक भी। आप भी तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चला रहे हैं, तो हम एक साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं। पहले जब बाजार इतना प्रभावी और इतना विराट नहीं था, तो इतने विज्ञापन भी नहीं थे। अगर आप याद करें अपने बचपन को, हम लोग याद करें तो अखबारों में, रेडियो पे तो विज्ञापन बहुत ही कम होते थे। बिना का गीतमाला में शायद कुछ हुए, हम लोगों के, आप लोगों के 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज चूंकि इतने वैश्विक विज्ञापन हैं, इतनी वैश्विक कंपनियां हैं, उनके वैश्विक हित हैं जो अरबों डॉलर में कमाई करती हैं और कमाना चाहती हैं। और जयपुर में रहकर यहाँ पर एक तौलिया बनाने वाली भी कंपनियां हैं, यहाँ पे मसाले बनाने वाली और बेचने वाले भी लोग हैं। तो यहाँ की गली में मसाले बनाने वाले से लेकर जो यूनिलीवर या पीएनजी जैसे विराट, महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये सब मिलकर वैश्विक बाजार, और सबको हम तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, हम खरीदेंगे तभी वो चलेंगे, बढ़ेंगे। तो उनको अब मंच चाहिए, अपने उत्पादों के विज्ञापन के मंच चाहिए। वो मंच चाहिए, इसलिए भी बहुत सारी चीजें होती हम देख रहे हैं। अब इतनी भीड़ हो गई है कि सबको अपने उत्पाद को अलग दिखाने के लिए उसको ज्यादा आकर्षक बनाना पड़ता है। उस आकर्षण में स्त्री की, और चूंकि यहाँ मैं लड़कियों को ज्यादा देख रहा हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ शायद विज्ञापन के कुछ छात्र भी हैं, क्योंकि विज्ञापन की एक शिक्षिका तो मुझे भी मिली थी, अभिषेका। तो आप लोग मीडिया, विज्ञापन वगैरह ये पढ़ते हैं, आपने एक लड़की के रूप में और एक मीडिया विद्यार्थी के रूप में इस पर ध्यान दिया है? निश्चित रूप से दिया होगा, क्योंकि आपके, मैं देख रहा हूँ कि कुछ इसमें पर्चे भी हैं उस पर। समाचार माध्यमों को छोड़ दें, स्त्री देह का, स्त्री की देह का और उसके अलग अलग अंगों का जैसा शुद्ध शोषण विज्ञापन की दुनिया ने किया है और कर रही है,
और उसका हमारे ऊपर, हमारी चेतना पर जो असर हो रहा है, पुरुष की चेतना पर, स्त्रियों की चेतना पर, सब पर, उसका भी कुछ अध्ययन करते हैं, आप देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, करते होंगे। मैं समझता हूँ कोई भी विचारशील स्त्री करती हो, उसको बुरा लगता हो, वो भी एक सामाजिक रूपांतरण है जिसकी एक, और इसमें हम सब अगर शामिल कर लें, यानी स्त्री को जिस रूप में सारे माध्यमों ने मिलकर पेश किया है पिछले कई दशकों में, उसके एक नतीजा निर्भया जैसी चीजों में, घटनाओं में होता है, वो उससे बहुत अलग नहीं है। तो ये जो रूपांतरण है, ये अच्छाई के लिए भी होता है, ज्यादा ज्ञान के लिए होता है, उच्चतर चेतना की ओर होता है, उच्चतर और महत्तर क्षमताओं के लिए होता है। वो रूपांतरण भी हम करते हैं क्योंकि ज्ञान के माध्यम भी हम ही हैं और देते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य की, उसको मैं पाशविक कह लूं, या हमारी जो निम्नतम प्रवृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, या जो स्टिमुलाई हैं हमारे, उनको उत्तेजित करके अनियंत्रित कर देने की, उद्दाम बना देने की हद तक का चेतना का रूपांतरण भी ये सारे माध्यम मिलके करते हैं। समाचार माध्यमों ने क्या किया है? हम जानते हैं कि हमारी आज़ादी दिलाने में समाचार माध्यमों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ये एक वो समय था जब मैं कहूँगा कि मीडिया की ओर से, मीडिया के शैशव में था हमारा देश। आज तो हम वयस्क हो गए हैं। तो उस समय सिर्फ अखबार थे और पत्रिकाएं थी, और जिसको भी अपनी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचानी होती थी, वो अखबार निकालता था, पत्रिका निकालता था। और एक पत्रिका, गांधी जी ने 5-5 पत्रिकाएं निकाली कई भाषाओं में। कई भाषाओं में उन्होंने, वो लिखते थे, खुद लिखते थे, पूरे लिखते ही रहते थे। गांधी जी ने इतना लिखा है पत्रों और अपने लेखों के माध्यम से, उतना तो शायद ही किसी ने लिखा। जिसको भी लोगों तक पहुंचने की और लोगों को बदलने की जरूरत महसूस हुई, उसने एक माध्यम का निर्माण किया। लेकिन वो मीडिया के माध्यम के शैशव का जमाना था। आज हम उस वयस्क और प्रौढ़ होते जा रहे हैं। तो एक पत्रिका, जैसे गांधी जी की पत्रिकाएं हरिजन जैसे निकलता था, वो 10-11 हजार शायद ऐसा दिखता था, लेकिन वो पूरे देश में असर करता था। तो एक प्रति का प्रभाव अगर हम देखें, प्रति व्यक्ति प्रभाव, तो वो जबरदस्त था। एक प्रति शायद 1 लाख को, या 1 लाख तक पहुंची थी और प्रभावित करती थी किसी न किसी रूप में, शब्दों और वाचिक माध्यमों से। आज कम से कम 300 तो समाचार चैनल हैं देश में, कुल 800 सिर्फ टीवी चैनल हैं, करीब 25-26 हजार अखबार हैं, इससे ज़्यादा पत्रिकाएं हैं। फिर अब इंटरनेट है, अब है ना, ट्विटर है, फेसबुक है, वो सब आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो जटिलता और जो बहुलता पैदा हुई है, इसने हर माध्यम की रीच को, उसकी पहुंच को और प्रभाव को सीमित किया है। पहले छोटी चीज़, एक चीज़ बहुत तक पहुंचती थी, आज बहुत सारी मिलकर भी एक तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती। तो ये जो माध्यमों का प्रभाव हमारे ऊपर निजी और हमारे सामाजिक इस निरंतर चलने वाले रूपांतरण में पड़ रहा है, वो बड़ा मिश्रित है। उसमें सब कुछ है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें लोभ भी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसमें लालच भी पैदा करने वाली चीज़ें कि मुझे ये लाइफस्टाइल, मुझे ऐसा बनना है, तो मुझे ये कॉस्मेटिक चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ये जीन्स चाहिए, मुझे ये ग्लासेस चाहिए, मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। तो एक अपूरणीय इच्छाओं को जगाने का काम भी इन्हीं माध्यमों ने भी किया है, इस बाजार की डायनेमिक्स के चलते। ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती। एक रूपांतरण ये हुआ है कि हम सब नागरिक से, मनुष्य से धीरे धीरे सिर्फ उपभोक्ता में बदल दिए जा रहे हैं। एक ये भी हुआ है कि हमको एक ऐसे सपने दे दिए गए हैं। मुझे एक सपना दे दिया गया है कि एक पुरुष के नाते मुझे कैसा दिखना चाहिए, मेरा शरीर कैसा होना चाहिए, मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, मेरी धज
और से कह लें कि पूरा एक व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो एक मुझे सपना गढ़कर नकली सपना दे दिया गया है, और मैं चूंकि वैसा नहीं हूं तो मैं निरंतर अपने को कमतर महसूस करता रहता हूं। आई कीप फीलिंग इनएडिक्वेट। आप सबके साथ भी ये समस्या है, क्योंकि सबको स्त्री सौंदर्य के भी मानक दे दिए गए हैं गढ़ के, कि होंठ ऐसे चाहिए, त्वचा ऐसी चाहिए, रंग ऐसा चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँ। तो हम सब अब सहज रहना हमारे लिए संभव नहीं। हम जैसे हैं हम वैसे ही होने के लिए पैदा हुए हैं, और मैं जैसा हूं मैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मुझे, क्योंकि प्रकृति की इच्छा यही थी। ये हम अब महसूस करना, ये सहजता, टू फील नॉर्मल इन वन स्किन इज नाउ इम्पॉसिबल। ये बहुत मुझे इनकी चिंता ज्यादा मीडिया, समाचार मीडिया जो करता है, हमने ठीक है कुछ क्राइम को कहीं ज्यादा दिखा दिया, क्राइम क्या, अपराध का क्या है, अपराध कब नहीं थे। मुझे संस्कृत बहुत प्रिय है, मुझे शास्त्र बहुत प्रिय हैं। मैं महाभारत पढ़ता हूँ तो मैं पाता हूँ कि कौन सा ऐसा नैतिक अपराध है जिसकी हम आज कल्पना कर सकते हैं जो उस समय नहीं है। महाभारत में इसका वर्णन नहीं। अशोक जी, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लें तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि हमारे तौबा करने लगेंगे। महाभारत में पढ़ लें, और हम ही अकेले नहीं, दुनिया भर की यही स्थिति। जो मनुष्य की चेतना है वो हमेशा मिश्रित है। उसमें उसका एक पाताल भी है और उसका एक दिव्य आकाश भी है। तो धरती तो है ही जिसमें हम जीते हैं, तो ये चेतना के पाताल भी होते हैं, चेतना के अंतरिक्ष और आकाश भी होते हैं, और इन सब से मिलकर हमारी ये चेतना है। हमारे आज के माध्यमों में हमको ये सब एक साथ मिल जाता है, तीनों लोक मिल जाते हैं। लेकिन ये सब कह के मैं एक पत्रकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, मैं उसकी कोशिश भी नहीं कर रहा। जो चीज एक फिल्म निर्माता से, एक सीरियल बनाने वाले से, एक उपन्यासकार से, एक गीत लिखने वाले से, एक गायक से, एक अभिनेता से मुझे अलग करती है, वो ये है कि मुझसे अपेक्षित, मेरी भूमिका ये है कि मैं केवल मनोरंजन न करूं, मैं आपकी रुचि और आपके हित इन दोनों की बात करूं। जैसे हम अपनी शास्त्रीय भाषा में कहेंगे प्रेय और श्रेय। प्रेय और श्रेय का अंतर हमेशा रहा है और दोनों की जरूरत हमेशा रहेगी। हमारा काम श्रेय वाला है। प्रेय यानी जो आपको पसंद हो, प्रिय हो, सिर्फ वही मैं आपको देता रहूंगा तो वो तो मनोरंजन वाले कर रहे हैं। मेरा काम है आपको श्रेय देना भी, यानी जो आपके लिए श्रेयस्कर है, आपके लिए अच्छा है, जो आपको आगे बढ़ने में, बेहतर मनुष्य बनने में, बेहतर नागरिक बनने में, सफल नागरिक बनने में मदद करेगा। वो काम हम कैसे कर रहे हैं? यानी ये जो कुछ मैंने वर्णन किया अभी, इस परानैतिक विश्व का, उसमें, और नैतिकता हमें चाहिए। मनुष्य भले ही हम एक इस कॉस्मिक स्कीम में पारानैतिक हूँ, लेकिन मनुष्य समाज के नाते और समाज चलने के लिए जो चीज़ें जरूरी है उसमें सामाजिक नैतिकता, निजी नैतिकता जरूरी है। उसके बगैर तो हम अराजक हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सारा खेल, हम मनुष्य नहीं रहेंगे। तो वो जो विचार का, विवेक का, निर्णय करने की क्षमता का, सही गलत जानने का, अच्छा और बुरा समझने का, ये जो कसौटी देने का, ये जो निकष देने का काम है, ये हमारा काम है। इस सारे परानैतिक खटाटोप के बीच में, इन तमाम बहुविध बहुआयामी रूपांतरणों के बीच में ज्ञान, विवेक, बुद्धि, संस्कार और नैतिकता जो हमें पशु से देवता तक ले जाती है, वो क्षमता हम में है। उसकी ओर समाज को और व्यक्तियों को बढ़ाने का काम भी हमारा है। हमें ये बताना, ये काम हमारा है, हम आपको बताएं कि आपके लिए क्या जानना जरूरी है। इसीलिए अर्थव्यवस्था की इतनी आर्थिक चीजें इसमें आती हैं। इसीलिए उसमें हर अखबार में एक संपादकीय पन्ना होता है, जिस पर आप लोग कभी संपादकीय पन्ना पढ़ते होंगे।
आप लोग से बता सकते हैं, आप लोग तो सारे मीडिया के छात्र हैं, कि कितने प्रतिशत लोग अखबारों के संपादकीय पन्ने पढ़ते हैं? कितना? 2 से 3। ठीक है, काफी करीब हो, मान लेते हैं 5%। तो देखिए अशोक जी, जैन साहब से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे जो बुनियादी हमारा जो काम है, जो सबसे गंभीर काम, यानी हर अखबार में एक संपादक के नाते मैं बता सकता हूं कि कम से कम एक 5 से 5 घंटे रोज में जिस काम में लगाता था, यानी हम एक संपादकीय बैठक करते थे, सारे वरिष्ठ लोग मिलते थे, आज दुनिया और देश के सामने बड़े मुद्दे क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों को अखबार में उठाना है, किन पर खबरें हमें मंगवानी है, किन पर हमें टिप्पणियां करनी है, किस पर संपादकीय लिखने हैं, किस पर संपादकीय लेख लिखवाने हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर अखबार में टिप्पणी जानी चाहिए, और फिर उसके बाद लिखना। तो जो सर्वोत्तम है, जो बिल्कुल मक्खन है किसी भी अखबार का, वो संपादकीय पन्ने में जाता है, जिसको पढ़ते हैं मुश्किल से 5% लोग। बाकी सब लोग क्या पढ़ते हैं? खेल, मनोरंजन, जयपुर टाइम्स, है ना, HT सिटी, भास्कर, जो पढ़ते होंगे आप, सबके अपने पन्ने हैं, महिलाओं वाले पन्ने हैं, उसको मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। एक आपको कसौटी देता हूं, आप सब अपने भीतर झांकिए और फिर देखिए कि जब आप घर में होते हैं, अकेले होते हैं, आप किसी भूमिका में नहीं होते, आप मंच पे नहीं होते, बहुत विद्वत्ता वाली बातें आपको नहीं करनी होती हैं, जब आप सिर्फ आप होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे सामने कई अखबार हो या एक अखबार हो मान लीजिए, और कई एक टीवी है और रिमोट है, तो हम क्या सबसे पहले देखते हैं? क्या सबसे ज्यादा देखते हैं? क्या सबसे कम देखते हैं? क्या बिल्कुल नहीं देखते? अखबारों में क्या हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या ज्यादा पढ़ते हैं, क्या कम पढ़ते हैं, क्या सिर्फ पलट लेते हैं, क्या कई बार, क्या हम बिल्कुल देखते भी नहीं? ये सब हम सब शामिल हैं, और हमारे सारे दोस्त नाते रिश्तेदार भी शामिल हैं। आपको जवाब मिल गया ना? तो ये है हमारी असलियत, उस समाज की जिसके रूपांतरण की चिंता आज हम कर रहे हैं। और ये सारे माध्यम मिलकर, जिसमें हम भी शामिल हैं, आपके इस मीडिया उपभोग व्यवहार के हिसाब से अपने दर्शक और पाठक के मनोविज्ञान को पकड़कर उसको वो देने की कोशिश है जो वो चाहता है और ज्यादा देखता है या देखती है। मैं एक एंकर हूं, और एंकर का आप काम जानते हैं क्या है होता है, तो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। चूंकि हम ज्योतिका तो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो मैं चैनल चलाता भी था, CEO भी था, तो उसकी एक हर महीने, जिसको आपने सबने सुना होगा TRP, तो TRP रिपोर्ट है ना, वो आती थी। तो जिस दिन प्राइम टाइम अपने शो में मैं बहुत किसी गंभीर विषय पर, बहुत अच्छे गंभीर, बहुत बढ़िया लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बातचीत कर लेता था, बहुत सचमुच ज्ञानपूर्ण बातें होती थी, सार्थक बातें होती थी, जो उसकी रिपोर्ट आती थी वो यूं होती थी, व्यूअरशिप। जिस दिन मैं कामयाब हो जाता था अपने मेहमानों को लड़ाने में, खूब गर्मा गर्मी, इसमें समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन तू में खूब कस के हो रही है, उसकी व्यूअरशिप रिपोर्ट ऐसे जाती थी। आप मुझे बता सकते हैं कि अब मैं इस स्थिति में क्या करूं? मैं अपना सर्वोत्तम विचार रिसर्च करके, खूब पढ़ के, सोच कर, चर्चा करके, मैं 700 शब्दों का या 1000 शब्दों का एक लेख लिखता हूं, जिसको पढ़ते हैं सिर्फ मेरे 2 से 5% पाठक। लेकिन इधर उधर से उठा के टीप के दीपिका पादुकोणे के सबसे ताजा अफेयर पर एक शुद्ध कचरा लिख दिया जाता है, उसको पढ़ते हैं 95% मेरे पाठक। मैं क्या करूं? क्या मैं आपको बातें कर सकता हूं कि आप दीपिका पादुकोण को नहीं, मेरा लेख पढ़िए? जब एक साथ डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, साइंस, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे चैनल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? BBC, CNN, C-SPAN, ये सब 100 चैनल हम सबके सामने हमेशा रहते हैं। हम लोग कितने लोग देखते हैं उनको?
सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? कपिल शर्मा हैं? भाभी जी घर पे हैं कि नहीं आजकल? मेरी पत्नी भी बहुत शौक से देखती है, मैं भी देखता हूँ। और क्या है, भाभी जी घर पे है कि नहीं, मुझे बताने की जरूरत है? तो जो बच्चे देख रहे हैं, और इसकी भी चर्चा मुझे अच्छा आपके पर्चों में वो सारी चीजें हैं, तो बच्चों के लिए तो बहुत सहज है कि भाई इसका मतलब ये है तो मेरे पापा पड़ोसी आंटी को के साथ ये सोच रहे होंगे और आंटी कुछ यही होगा ना। अभी पिछले हफ्ते मैं एक दिल्ली के बहुत पुराने और बड़े कॉलेज में गया था, उनका कार्यक्रम था, मुख्य अतिथि था, बात करनी थी। 4000 बच्चे हैं, कॉलेज है पूरा। वहाँ पर हमारे भाषण जब हो गए तो उसके बाद जो बच्चों द्वारा बच्चों ने नाटक किया, मैं नाटक देखकर चकित हो गया कि जैसा वो सारा नाटक ये था, केवल जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कहते हैं, यानी 4 जोड़े थे उसमें और हर जोड़े का हर साथी एक दूसरे के साथ को कर रहा था और एक दूसरे को सामने आ जाते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ, वगैरह वगैरह। ये अपने कॉलेज के वार्षिकोत्सव में बच्चों द्वारा तैयार किया गया, और ये बच्चे नहीं थे, बड़े वयस्क थे सारे, ये उनका नाटक था और बड़े मजे से उन्होंने किया। ये जो रूपांतरण है, ये अखबारों के कारण नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं जिनका कुछ का जिक्र मैंने आपसे किया। तो आज ये सारे माध्यम मिलकर हम लोग जो कर रहे हैं मित्रों, कि हमारे मनुष्य की गरिमा की परिभाषा, जो मनुष्य के रिश्तों की गरिमा की परिभाषा और उनकी समझ और उनकी इज्जत, वो बदल रही है। मनुष्य और समाज का रिश्ता, मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता, अभी इसमें मैं सामाजिक न्याय, अभी जो गरीबी और भुखमरी जैसे, पिछड़ेपन जैसे विषय हैं उनको मैं नहीं ला रहा हूँ। तो इन सब जो एक मानसिकता बनी है, उसके कारण आज इस देश में और दूसरी जगह भी है जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, किसान को और खेत को, खबरों को आने के लिए किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, और एक दो आत्महत्या से काम नहीं चलता। जब 50-50 हो जाती है तब वो बड़ी खबर बनती है। या सामूहिक बलात्कार हो, कोई बड़े आदमियों के साथ हो, बड़े शहर में हो, तब वो खबर बनती है। क्योंकि वैसे तो हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब कम से कम 100 बलात्कार ना होते हो, लेकिन अगर वो छोटे के साथ बलात्कार हुआ है, गरीब स्त्री के साथ बलात्कार हुआ, तो वो बड़ी खबर नहीं बनती। बड़ों के साथ गड़बड़ होती है, इंद्राणी मुखर्जी का मामला याद कीजिए। तो ये जो मूल्यबोध है समाज का, जो पैसे से, पद से बड़ा है, उसके साथ होने वाली छोटी घटना भी बड़ी खबर बनती है, और जो छोटा है, गरीब है, लेकिन उसके साथ कितनी बड़ी से बड़ी चीज हो जाए वो खबर नहीं बनेगी। और हम भी, वो खबर इसलिए भी बनती है, मैं आपको बताता हूँ, कि लोग बड़े के साथ की दुर्घटना को ज्यादा चटकारे लेके देखते हैं। गरीब, गंदे से दिखने वाले व्यक्ति की दुर्दशा और उसकी दुर्घटना उतनी रोचक नहीं होती, उतनी रंगीन और आकर्षक नहीं होती। इंद्राणी मुखर्जी का मामला कितना नयनाभिराम है। सुंदर स्त्री, अमीर, शक्तिशाली, ग्लैमरस, बड़े लोगों की बातें, उनकी इंट्रीग, उनके भीतर की जो दुनिया है, कितना मजा आता है सबको, नहीं? मीडिया ने भी वही परोसा। तो ये एक ऐसे हम दुष्चक्र में फंस गए हैं मित्रों। दिक्कत ये है कि जो, चाहे वो समाचार माध्यम हो या, लेकिन अब अपने माध्यम की बात करता हूँ, जो समाचार चैनल हैं और अखबार हैं, हम चाहें भी तो इंद्राणी मुखर्जी अगर दो चैनल वो दिखा रहे हैं, उस समय मैं चाहूँ कि मैं कोई एक अच्छी चीज़ आपको दिखाऊं, तो मैं दिखा तो सकता हूँ, लेकिन उसको कोई देखेगा। मैं जब चैनल चलाता था, और ज्योतिका जानती है उसको, मैंने तय किया कि हमारे चैनल में, समाचार चैनल में, अपराध का कार्यक्रम नहीं होगा। हमने अपराध का कार्यक्रम चलाया ही नहीं, जो सनसनी और दस्तक और ये सब आजकल जो आप देखते हैं हर चैनल पे चलते हैं रात को। हमारा वो जो टाइम बैंड था वो कमजोर रहा शुरू से। हम इसका क्या करें, इस मनुष्य के व्यापक मनोविज्ञान को, और यहाँ पर समाजशास्त्री हैं,
मनोविज्ञान के लोग भी हैं, वो इसका बताएं हमें कि हम इसका क्या करें कि लोगों की मनोरंजित होने की जो भूख है वो उद्दाम हो गई है, अनियंत्रित हो गई है। हम हर समय रंजित होना चाहते हैं, हम शिक्षित नहीं होना चाहते, हम संस्कारित नहीं होना चाहते, हम हर समय रंजित होना चाहते हैं, हम हर समय मस्ती चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और कैसा आनंद? जो ये जो एक वैश्विक समस्या है मनुष्य के वैश्विक चेतना की, इसको हम क्या करें? इसी के बीच में देशों का विकास होना है, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होना है, हमारा जो गरीब हैं उनको आगे ले जाना है। उनको आगे ले जाने के लिए उन पर ध्यान चाहिए, मीडिया का फोकस चाहिए उन पर। हमारा काम ये है कि हम उन पर सत्ता का ध्यान खींचे ताकि सत्ता कुछ करे, हम सत्ता को जवाबदेह बनाएं, हम भ्रष्टाचार को रोकने में, एक बेहतर समाज निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। ये सब हम करते हैं। जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा करना चाहिए, मैं मानता हूं। मैं खुद बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, घोर असंतुष्ट हूं अपने मीडिया के अपने काम से, उसके एक प्रतिनिधि के रूप में। हम ये सफाई नहीं दे सकते कि आप चूंकि यही देखना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं। हमें जो चीज़ अलग करती है, हमें अगर कुछ अतिरिक्त इज्जत मिलती है, एक प्रतिष्ठा है और समाज की हमसे जो अपेक्षाएं हैं वो दूसरे फिल्म वालों से अलग हैं, वो इसलिए हैं कि हमसे वो अपेक्षित है कि जो अच्छा है, जो श्रेय वाला है, वो हम आपको दें। लेकिन इस बाजार में आज मीडिया भी एक उसका हिस्सा है, और चूंकि हिस्सा है इसलिए उस बाजार को आगे बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जो व्यवहार है, उसी में वो शामिल हो जाता है। उसको अगर अपनी भूमिका निभानी है तो उसको बाजार की इस लाभ कमाने वाली चीज़ से उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि इस सीमा से ज़्यादा मुझे लाभ की चिंता नहीं करनी है, श्रेय की चिंता करनी है। ये करने के लिए बहुत ताकत से, बहुत हिम्मत चाहिए, भीतर जीवट चाहिए। वो आमतौर पे व्यापारी में नहीं होता। मीडिया भी एक व्यापार है। ये मीडिया की मजबूरी है, समाचार माध्यमों की, अखबारों, चैनलों की मजबूरी है कि वो इसी मुक्त अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करें। अभी न्यू लिबरल का जिक्र किया अशोक जी ने। उसी न्यू लिबरल, वो लिबरल केवल आर्थिक अर्थ में ही नहीं है मूल्यों के अर्थ में भी है। A very liberal morality is also part of the whole game. उसके बीच में काम करें, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने जटिलताएं आपके सामने रखी हैं, जो अब मैं थोड़े बच्चों से बात करना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों के बावजूद हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं एक गीतकार नहीं हूँ, या मैं केवल एक अभिनेता नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, एक संपादक हूँ। तो उस रूप में पत्रकार जो भी है, पत्रकारिता और पत्रकार की एक अलग इज्जत होती है समाज में। इसलिए होती है कि सामाजिक अपेक्षाएं उससे अलग हैं। इसलिए पत्रकार होना एक बहुत गौरव का काम है। There is a glory about being a good journalist. वो नैतिक गौरव है, बौद्धिक गौरव है। वो गौरव हमेशा रहेगा। तो समाज को हमेशा अच्छे पत्रकारों की जरूरत रहेगी, वैसे ही जैसे समाज को हमेशा विचारशील विज्ञापन बनाने वालों की भी जरूरत रहेगी। तो आप लोग मीडिया के किसी भी हिस्से को पढ़ने यहाँ पे आए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अहम काम करने आए हैं। आप किसी भी उसमें जाएं, आप विज्ञापन में जाएं, जनसंपर्क में जाएं या पत्रकारिता में जाएं, आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर आप लोगों की चेतना को प्रभावित करेंगे। और कोई भी ऐसा काम जो लोगों की चेतना को प्रभावित करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, और उसमें एक अपने आप नैतिक जिम्मेदारी आती है। आप जितने अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, उतना आदर और उतनी प्रतिष्ठा और उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। इसलिए इस पत्रकारिता में और मीडिया में, इस दुनिया में आने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ये चुना। आप एक बहुत अच्छी जगह हैं,
आपको अच्छे शिक्षक मिले हैं और बहुत, जैसा मुझे लग रहा है कि संस्कार भी बहुत अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छा अवसर आपके पास है कि इन सारी चीज़ों को, जीवन की और इस माध्यम की जटिलताओं को समझ के भी आप एक अलग विशेष जगह बनाएंगे और ये दुनिया और ये भारत जैसा आज है उससे थोड़ा बेहतर बनाने में आप एक भूमिका निभाएंगे। एक ऐसी भूमिका जो आप ही निभा सकते हैं, जो और लोग नहीं निभा सकते। यही हमारा गौरव है और इस गौरव को पाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir, for such enlightening and enthralling words of wisdom. As a token of a heartfelt gratitude, which would serve as a fond remembrance, I request Dr. Rakhi Gupta, Registrar, the IIS University, to present a memento to Shri Rahul Dev. Thank you, ma'am. I request the volunteers to escort the dignitaries to their seats as we are about to commence with the keynote session. Namaskar. Shri Rahul Dev Ji, keynote speaker at the inaugural session, Dr. Ashok Gupta, Honorable Vice Chancellor, the IIS University, Dr. Rakhi Gupta, Registrar, Professor N.K. Jain, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, Dr. Garima Srivastava, and Dr. Aarti Sharma, organizing secretaries of this conference, members of the organizing committee, esteemed invited speakers, participating delegates, and guests in the audience. It is my proud privilege to propose a formal vote of thanks on behalf of the IIS University at the two-day conference on social transformation and media, realities and challenges. I would like to express my deep gratitude to Shri Rahul Dev Ji for so very kindly acceding to our request to deliver the keynote address. Your address, sir, has set the tone for the deliberations that are to take place over these 2 days. I am very thankful to Dr. Ashok Gupta, Honorable Vice Chancellor, for his unstinted support and invaluable guidance throughout, which has given this 2-day event its present shape. I extend my gratitude to Dr. Rakhi Gupta for her invaluable inputs and advice during the preparations of this conference. I would like to thank Professor N.K. Jain for his valuable guidance and meticulous planning, and Dr. Subhash Garg for his immense support and motivation. I am thankful to all the invited speakers, academicians, delegates and students who have come from far and wide to attend the conference. I sincerely hope that the exchange of ideas during the course of this conference will make new contributions to the field and will be of immense value in times to come. I also acknowledge the help and support extended by my colleagues, student volunteers, and the technical and support staff towards organizing the conference. Lastly, I thank all the media persons whose ample coverage of the conference will bring this contemporary issue closer to public interest and notice. I hope that this conference will accomplish all its objectives and proves to be a fruitful endeavor for all the delegates. Thank you once again. And 3rd October 2015. The theme of the session is constructing the role of social media in